So, as per our planning, today we are about to start a new chapter in physiology, that is excretion and osmoregulation, which is being defined as a system of good riddance and homeostasis. Now, it being the first day of the topic, as usual, we will go with a brief synopsis of the complete chapter to get an head and tail of the topic. While we go through the synopsis, I do hope that you get a briefing of the chapter, that in the upcoming days, what will be the code of the conduct of the chapter, where to begin and how to conduct, and finally where we are going to end. So, as usual, expected number of questions from the chapter, pattern wise, maximum 2 to 3. So, throughout the topic, what are the various question oriented parts? So, this morning we are going to experience that through a brief synopsis. We will start as usual with an introduction. Then whatever being introduced, simply would like to go through the comparative study of excretion versus egestion. Then there would be another aspect related to the phenomena. The chapter has been headed with excretion and osmoregulation. Then we would like to know what is osmoregulation. So after going through this brief introduction followed by excretion versus egestion, the next very concept come in the mind is about waste and its types. And indeed, we are going to discuss by putting up a question over here, that why these waste are produced in the body of an organism. That what will be mentioned, and then we will categorize it. Finally, we would be interested to know modes of excretion in animal kingdom. And thereafter, as usual, the next very question arises in the mind, that before peeping into the details of human excretory physiology, we would like to have a briefing regarding its existence and its pattern throughout the animal kingdom, since we are dealing with zoology. Then we will have a very close comparison of taxonomic position of excretory system in animal kingdom. Now, right from this topic onwards, we are also going to cover up and another aspect of our course. Different stroke में हम we are going to experience excretory structure of two representative animal forms, just to cover the patterns of question. Earthworm and cockroach.
अलग से हमें इन्हें डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सिस्टम्स में हमें साथ साथ ये दो टाइप मेंबर्स के जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स यही आपको बता देंगे। आ रहा है सबको समझ में, है ना? मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच हमें अलग से डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। We will go into experience the different 6 systems of cockroach body what are present in our course। एक क्वेश्चन उस हिस्से से आना है, तो वो आपके इस फिजियोलॉजी में आप अब से लेके जितने भी सिस्टम्स हम पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिवली वहां पर कवर कर दिया जाएगा। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट द चैप्टर। तो दैट विल बी द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और कुछ लॉजिकल कंपैरेटिव क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, टैक्सोनॉमिक टच देते हुए। Thereafter, this is another part. Then we actually begin with the question. The main gist of the chapter: human excretory system. Now, as usual, it has got those 4 components. A pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder, and finally urethra. So we are going to deal with 3 aspects regarding the topic. Anatomy, morphology, and finally histology. After experiencing all the aspects regarding the human excretory system under the 3 heads: anatomy, morphology, and histology, soon we are going to follow up with the main functional aspect of the system: physiology of excretion. Physiology of excretion. Which we are going to basically discuss under 2 heads. One is formation of urea, and another is formation of urine. जिसे यूरोपोएसिस भी कहते हैं। And it itself being performed under 3 major heads. Those are respectively ultrafiltration, selective reabsorption, and tubular secretion. Tubular secretion. Now from here onwards, after going through different aspects, the very next topic one of the very significant topic of the chapter, and that's none other than what we know, that counter current system. What is counter current system? Basically, mammalian characteristic. Among the whole animal kingdom,
such a phenomenal act of kidney as an excretory osmoregulatory organ. It perform the counter current system. So that's a purely mammalian characteristic. That what we are going to establish by the end of the chapter. One of the portion of the chapter I have already completed while we were on the topic endocrine system, but still to mention that whatever function being actually executed by kidney physiologically, it needs a very precise and close vigilance on that mechanism. So we are going to discuss a regulation of kidney function, which is basically going to reveal the endocrine behavior of the kidney itself by the action of ADH and ANF. But point to be noted, इसमें directly कौन involved है इन तीनों pathways में? Only because it is from posterior pituitary and it is from the heart. वो तो मैंने एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने इस तरह से तीनों की लिस्टिंग की है. 3 respective paragraphs going to reveal the role of 3 different hormones, but all are related to the kidney function, and kidney is dedicated to act as a osmoregulatory organ too, क्योंकि उसे बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करके शरीर को निजात दिलाना, रिडेंस, अ गुड रिडेंस एंड होम्योस्टेसिस. किससे जो है शरीर को बचाना? एक सीरीज ऑफ वेस्ट. ऐसे वेस्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेस्ट? बॉडी का कौन सा प्रोडक्ट अचानक अगले ही पल शरीर के लिए वेस्ट की तरह डिफाइन होता है? एंड देयर आर मेनी सच कंसेप्ट्स. जिस तरह से ये चैप्टर स्टार्टअप होगा तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए. दिस विल बी सीक्वेंस. कोई भी चैप्टर आप पढ़े, आपको एक आपके दिमाग में एक बेसिक फॉर्मेट रहना चाहिए हमेशा. देयरफॉर आई ऑलवेज गिव अ वर्थफुल टाइम टू द डिस्कशन ऑन सिनॉप्सिस, कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ वी आर गोइंग टू एंड अप व्हाइल वी कंडक्ट द होल चैप्टर इन अ सीरीज. So by the end of the chapter, you are going to experience the regulation of kidney function under these 3 headings. But what I have, and at your own level, while you do your self study, you could also refer to chapter endocrine system. Finally, the act of physically voiding the urine is called micturition. What is micturition? वो कैसे परफॉर्म होता है और उसके पीछे कैसे रोल है नर्वस सिस्टम का टू परफॉर्म दैट एक्ट ऑफ voiding, यानी पासिंग आउट द यूरिन फिजिकली, है ना, micturition. Then we are going to discuss whatever the product urine outside the body. एक नॉर्मल यूरिन की composition क्या होनी चाहिए अंडर हेल्दी स्टेट? composition of urine. And if any anomaly, whatever the benchmark parameter has been mentioned कि urine after being released outside the body, उसमें क्या क्या कितना होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, what should be there in what proportion and what should not be there in the urine when it has been eliminated outside the body, है ना. But that's the composition of urine. लेकिन from that normal orthodox condition, changes are expected, and a person definitely is going to experience a subject of variation. तो उसी को हम डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक एनामोलीज ऑफ यूरिन. तो उसमें जो भी हमें पता चलेगा, definitely it is a significant way to test and judge different types of disorders. Every chapter of physiology finally end up with disorders. So the end part of the chapter is going to be discussed as disorders of excretory system. जो भी disorders होंगे
One of the disorder is being encountered by subjecting the person who is experiencing renal failure, who is experiencing such a person is subjected to one of the assisted medical technology, hemodialysis. That's what we call artificial. So kidney is rather a natural dialyzer. If hemodialysis, the whole technique and the device altogether is going to act as a artificial kidney for so-called the sufferer person who is being subjected to such an anomaly कि वहां उसके किडनी फेल हो चुके हैं, there is some case of renal failure due to XYZ reasons. तो बेसिकली एक हेल्दी पर्सन में किडनी उसके लिए नेचुरल डायलाइजर का काम कर रहा होता है. तो फाइनली, बट दिस इज नॉट द परमानेंट रेमेडी, ये तो एक टेम्पररी रेमेडियल एक्ट है. Slowly and later, sooner or later, the person has to face a situation of lethality. So in that case, and another way of treating and giving remedial factor to the patient is subjecting to surgery what we call organ. सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के कंसेप्ट में मैं आपको पूरा एमएचसी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे हमारे इम्यून सिस्टम डिफरेंस बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ एग्जिबिट करते हैं, और उस नेचर के चलते हुए एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए व्हाट शुड बी दैट हिस्टोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ डोनर एंड रेसिपिएंट. ये सारे एस्पेक्ट्स यहीं बता दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग टू कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर इम्यूनिटी. व्हाट आर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, वो कैसे काम करते हैं, और वो जिन पर भी काम करते हैं बेसिकली हु इज दैट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी जो अपना एक जनरल फंक्शन करता है, वो उसकी गलती नहीं है, उसका नेचर ही है टू रिजेक्ट द फॉरेन टिश्यू, दैट इज टी किलर सेल्स. कौन से सेल्स, वो ये काम कैसे और क्यों करते हैं, और उनको फिर हम कैसे होल्ड डाउन करें जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वेदर किडनी, हार्ट, एनीवन, वो तो कोर्स में हमारा टॉपिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, तो हम उसके रेफरेंस में बात करेंगे. बट दैट कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जो चैप्टर इम्यूनिटी क्लास 12th एनसीईआरटी के पोर्शन से कोर्स का क्वेश्चन है, वो मैं यहीं कवर करा दूंगा. सबको आ रही मेरी बात समझ में? एवरीवन डिड गेट द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ द चैप्टर? सबको सामने क्लियर है बिल्कुल? So now should I continue? So as per the synopsis, we are going to introduce the chapter. Now first of all, take a little bit dictation, then I am going to the presentation part. ऐसा लिखें, in nature every organism among animal kingdom, in nature every organism among animal kingdom has been provided, first of all, has been provided in nature among animal kingdom, every organism has been provided with an ability to
move various substances in nature among animal kingdom. Every organism has been provided with an ability to move various substances within the body as a need of as a need of metabolism, as a need of metabolism. मेटाबॉलिज्म वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, एज अ नीड ऑफ मेटाबॉलिज्म, comma, which every cell requires to conduct its activity, which every cell of the body requires, I repeat, which the every cell requires to conduct its activity, thereby producing some or either metabolite, thereby producing some or other metabolite for the body. इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या बात सामने आ रहा है कि अगर मैं जनरल बात करूं कि वी आर डीलिंग विद एक्सक्रीटरी सिस्टम, गोइंग टू डील अप विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट द क्वेश्चन अराइज कि ये सिस्टम और ये एबिलिटी जो भी है ये तो अपने आप में काम करेगा, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें, एक्सपीरियंस करें या रिकॉल करें, एनिमल किंगडम के रेफरेंस में बात करें, हर एक ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है, राइट फ्रॉम पॉरीफेरा टिल कॉर्डेट्स, सबके शरीर में एक सिस्टम ऑफ मूवमेंट, सर्कुलेशन मौजूद है. मैंने वो सर्कुलेशन वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन. सिंपल सा एक रेफरेंस लिया कि शरीर में लगातार कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इन द एनिमल किंगडम, हर किसी के शरीर में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी थ्रू आउट, इतने सारे सेल टाइप से सबको एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट होगा, फिर उसका प्रोडक्ट किसी और के लिए, थिंग्स आर गोइंग. तो एवरी टाइम देयर इज अ नीड ऑफ मोबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. शरीर में लगातार चीजों का जो है मूवमेंट होना जरूरी है, और वो करता है. वो हर ऑर्गेनिज्म इस बात को एग्जिबिट कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सारे चीजों की जरूरत क्या किस लिए चाहिए? टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म. एंड एवरी टाइम वी नो मेटाबॉलिज्म इज द अल्टीमेट इनहेरेंट सोर्स ऑफ एवरी एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. तो हर एक सेल को ही उस मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करते हुए खुद उसका हिस्सा बनेगा वो सेल, और शरीर के लिए कुछ ना कुछ देयर ऑफ आइदर कुछ ना कुछ बनाता रहेगा. ऑल टुगेदर शरीर के लिए वो बना रहा है. अब वो शरीर के लिए कितना यूजफुल नहीं होगा या फ्यूचर में होगा, these are the different stages and circumstances of the body. मैं all together उसको मेटाबोलाइट कहूंगा. क्या कहूंगा? भाई शरीर नहीं बनाया शरीर के लिए, अच्छा बनाया बुरा बनाया वो बाद में तय होगा. तो शरीर के लिए जब बनाया तो एक मेटाबोलाइट होगा, है ना, फॉर द बॉडी. यहां तक सबने लिखा? एवरीवन पैराग्राफ चेंज करके ऐसे लिखे, पैराग्राफ चेंज करके ऐसे लिखे. The general metabolites of an animal body are substrates, water, salts, substrate, water, salt, CO2, सबस्ट्रेट्स में ग्लूकोस, अमीनो एसिड्स, सबस्ट्रेट्स में ग्लूकोस, अमीनो एसिड्स,
fatty acids or nucleotides. And the nucleotides, the general metabolites of an animal body are, एनिमल किंगडम में कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल बॉडी है तो बहुत कुछ, अगर हम बारीकी से इनको प्रिसाइसली डिफाइन करें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर गैसेस। रेफरेंस के लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया इन जनरल, पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं। The above mentioned metabolites regularly move throughout the body as per need. The above mentioned metabolites in general move throughout the body as per need. है ना? The above mentioned metabolites in general move throughout the body as per need. But their fate and destiny, depends upon the metabolic state of the organism. But their fate and destiny inside the body depends upon the metabolic state of the animal body. तो क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं? सबसे पहला ऊपर का जो मेटाबोलाइट है ये तो दिख रहा है कि ऑल आर ऑफ यूज, दे कांट बी टर्न आउट एज वेस्ट, वो बॉडी के लिए वेस्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट्स हैं, आइदर एनर्जी सोर्स, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं वो, तो ये तो जब भी बनेंगे इनका इस्तेमाल होना है, दे आर ऑफ यूज। ठीक है। फिर वाटर, बोले सर वाटर भी बॉडी 70% 75% मेड अप ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है, बट मेटाबॉलिक वाटर भी शरीर में बनता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस गोइंग ऑन। जितने भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है उसमें पानी तो निकलता है, और फिर उसको दोबारा तोड़ने के लिए मोनोमर में फिर वाटर के प्रेजेंस से, तो मेटाबॉलिक वाटर होता है जो लिवर में स्टोर होता है। देयर आर मेनी सच थिंग्स गोइंग ऑन, इसलिए तो इंट्रोडक्शन में लिखवा दिया, देयर आर सीरीज ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्सली अकर वन आफ्टर द अदर इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन द लाइफ ड्वेलिंग प्रॉपर्टीज, जिसे हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कहते हैं। बट द क्वेश्चन इज, इन सभी प्रोसेसेस में शरीर के लिए शरीर हमेशा कुछ बनाता है, अच्छे के लिए बनाएगा वो, तो चाहे वो वाटर और क्या सॉल्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दे आर द कैटलिस्ट, दे आर द कोफैक्टर्स, अलग अलग तरह के एंजाइम्स और रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं एज कोफैक्टर, और उनके प्रेजेंस से शरीर का एक खास फिनोमिना अचीव होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो शरीर का होता है। फिर CO2, बोले सर CO2 तो एक वेस्ट गैस है, इसको क्या जरूरत है रिटेन? ये भी रिटेन होता है, क्योंकि एक तयशुदा मात्रा से CO2 भी बॉडी में रिटेन होना बॉडी के जो है ऑस्मो रेगुलेशन और पीएच को मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? ब्लड पीएच। तो वही, इसलिए तो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, ये सारे मैंने इनको अभी कुछ किसी को वेस्ट नहीं कहा, मैंने इन सबको क्या कहा है, यानी बॉडी से ही बने और बॉडी के लिए बने हैं। लेकिन भविष्य में द अबव मेंशन जितने भी कैटेगरीज है, अच्छा बुरा जो भी दिख रहा है, ऑल दीज मेटाबोलाइट्स एंड देयर फेट एंड डेस्टिनी, शरीर में आगे चल के कौन कहां चला जाएगा, ये डिपेंड करता है कि शरीर रिस्पॉन्ड में किस मेटाबॉलिक कंडीशन में है। तो पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये प्रेजेंटेशन मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, फिर आप लोग नोट डाउन करिएगा, पहले समझिए। लेट अस रिफर आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, ओके, लेट अस जस्टिफाई व्हाट इज दैट फेट एंड डेस्टिनी। क्योंकि ये बात तो तय है, हर ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम में अपने सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से लगातार चीजों का मूवमेंट शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लगातार कर रहा है, और अपने मेटाबॉलिज्म को अचीव कर रहा है, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए। लेकिन जब चीजों को वो मूव कर रहा होता है, कौन सा चीज कितना जरूरी है, नहीं है, कहां ले जाना है, नहीं ले जाना है, ये तय कैसे होगा?
और इस दौरान क्या हर कुछ शरीर को फेवर ही करता है, क्या कोई डिस्टर्ब नहीं करता? दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। हर चैप्टर शुरू करते हैं, जैसे मूवमेंट आप लास्ट वीक पढ़ रहे थे फ्राइडे, मैंने आपके सामने क्या बात रखी थी? सेम ट्रैक ऑफ लर्निंग। लर्निंग एक ट्रैक होता है भाई। मूवमेंट, मूवमेंट ठीक है, क्या है सब समझ लेंगे, लेकिन द क्वेश्चन अराइज, मूवमेंट जैसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एनिमल किंगडम के हर एक मेंबर, चाहे वो सिंपल से सिंपल टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल हो, या फिर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम लेवल शरीर हो, हर किसी को अपने शरीर में कम ज्यादा मूवमेंट जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ गई। तो उसको जस्टिफाई करने की शुरुआत कैसे थी कि देख लीजिए आप, कोई भी एनिमल बॉडी होगा, उसमें सारे प्रोसेसेस होते हैं, सारे सिस्टम है, हर सिस्टम अपना काम कैसे अंजाम देता है, कैसे अकम्प्लिश करता है, किसी ना किसी तरह के मूवमेंट। भाई डाइजेशन तो होगा, लेकिन पहले आप खाना को चबाओगे, स्वेलो करोगे, डीग्लूटेशन करोगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो जो पहुंचेगा, तब तो साइट ऑफ वहां डाइजेशन होगा। तो इस दौरान आपने इनटेक किया, बाइट किया, मेस्टिकेट किया, स्वेलो किया, व्हाट आर दीज? दीज आर द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डाइजेशन। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ, और फिजिक्स का नियम है, एनीथिंग इन मोशन एंड चेंज इन पोजीशन इज व्हाट? मोशन। उसी मोशन को बायोलॉजिकल बॉडी में मैंने क्या कहा? मूवमेंट, लिटरल मीनिंग। क्योंकि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में किसी लिविंग बॉडी का जो मूवमेंट है, जो मोशन है, मोशन ही मूवमेंट, वो सिर्फ मूवमेंट नहीं है, वो एक इनहेरेंट फोर्स का मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? व्हाट इज इनहेरेंट फोर्स? देन यू गॉट द आंसर। वो कहां से आया? आंसर इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ड्यू टू वही, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शंस, कुछ ऐसे प्रोसेसेस अंदर चल रहे हैं जिसको परफॉर्म करने के लिए अंदर भले छोटे मिनिएचर इंजन्स। हियर स्टार्ट्स द बायोलॉजी। नियम उसका भी फॉलो अप हो रहा है फिजिक्स का, लेकिन उसको परफॉर्म करने वाले एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, हेंस द साइंस ऑफ बायोलॉजी रिवील्स। तो सेम इस चैप्टर को समझने के लिए कि क्यों मैंने ये शब्द लिखा एक्सक्रीशन, एक बहुत बढ़िया निजात पाने का तरीका। निजात किससे? किससे निजात पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हमें ऑस्मो रेगुलेशन चाहिए, और ऐसा करके शरीर क्या हासिल करना चाहता है? अल्टीमेटली होम्योस्टैसिस। क्या हासिल करना चाहता है? तो लॉजिक को समझिए आप कि अभी अभी जो लिस्ट लिखवाया, और ठीक है, लेट अस डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द डेस्टिनी एंड फेट ऑफ ऑल दीज मेटाबोलाइट्स। क्या वो शरीर के लिए सब इस्तेमाल होने के लिए रुक जाएंगे, या उनमें से कुछ जो है कुछ और ही चीज बनेंगे शरीर के लिए, और फिर एक डिसीजन फैक्टर काम करेगा? वो डिसीजन फैक्टर ही हमारे शरीर की एक और एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट विल बी लेफ्ट विद इन द बॉडी एंड व्हाट विल बी एलिमिनेटेड। व्हाट विल बी, शरीर से उसको बाहर जाने दिया जाए, विल बी एग्जिट आउट। क्यों? क्योंकि इससे फिर शरीर हासिल करेगा ऑस्मो रेगुलेशन, और ये एक तरीका है होम्योस्टैसिस बनाए रखने का। क्या तरीका है? चैप्टर ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, 12th एनसीईआरटी, साफ साफ लिखा है हर ऑर्गेनिज्म अपने गिवन एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर से ही इन्फ्लुएंस्ड होके, है ना, इन्फ्लुएंस्ड होकर, असर में आकर ही तय करते हैं कि क्या वो अपने आप को अडेप्ट करें, रेगुलेट करें, कंफर्म करें, सस्पेंड करें, या माइग्रेट कर जाए। एवरीवन गेटिंग द कंसेप्ट? तो आज हम एक रेगुलेशन का ही तो तरीका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेगुलेशन ऑफ व्हाट? वाटर। और वाटर प्योर नहीं होता, उसमें जो सॉल्ट्स एंड डिफरेंट अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्यूट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। कौन कितने प्रोपोर्शन में मौजूद होगा, इसको तय कर पाने की उस एबिलिटी को ही हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और इसको हासिल कर दें तो शरीर इस सिस्टम के थ्रू बॉडी को ऑफर करता है वन वे ऑफ होम्योस्टैसिस। 12 के 12 सिस्टम, चाहे वो इंटेग्यूमेंट्री हो, जितने भी 12 सिस्टम्स है, हर सिस्टम बाकी 11 सिस्टम के साथ तालमेल बिठाते हुए शरीर को होम्योस्टैसिस ही देता है। होम्योस्टैसिस एक ऐसा लुक्रेटिव वर्ड नहीं है कि वो सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के लिए वर्ड आएगा। हर सिस्टम अपना काम करते हुए बाकी 11 सिस्टम, इफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सिस्टम्स? 12 सिस्टम्स। तो हर 12th सिस्टम बाकी 11 सिस्टम्स के साथ मिलकर, ऐसा आप मान के चलिए, शरीर को अल्टीमेटली स्टेट ऑफ स्टेडीनेस, हेल्दीनेस में रखता है। एंड वी आर एग्जिबिटिंग अवर लाइफ। हम डे टू डे लाइफ, हम जिंदा है, सर्वाइव है, और अपना डे टू डे लाइफ अच्छे से एग्जिबिट कर पाते हैं। तो आज उसी कॉन्टेक्स्ट में एक नया सिस्टम और नई एबिलिटी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, और उसको समझने का तरीका यह है कि लेट गेट बैक टू एनिमल किंगडम। और इन एनिमल किंगडम नाउ, whoever the member, lower, middle or higher member,
based on habitat, based on are of four types. Terrestrial, मेरीन, मतलब एक्वाटिक तो है लेकिन उसमें भी मेरीन कंडीशन अलग, एंड फ्रेश वाटर. यस और नो? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एनवायरमेंट हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल ड्राई कंडीशन, लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल, लेकिन वाटर प्योरली अवेलेबल नहीं है, उसके साथ कंडीशंस जुड़े हुए हैं. एंड फाइनली देयर आर सम मेंबर्स विथ ड्वेल हैबिटेट. व्हाट हैबिटेट? यानी आई एम टॉकिंग अबाउट amphibians that primarily they are going to execute and reside in early life in water, and thereafter by the adulthood they are going to move to the land conditions. तो शरीर को ही तो सब्जेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है, मतलब बॉडी कैसे सब्जेक्टेड हो रहा है, उसका सामना एनकाउंटर कहां और किन कंडीशंस में हो रहा है, इससे ही सब चीजें तय होती हैं. फिलहाल हम जिस टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं, वन थिंग इज कॉमन अमंग एनिमल किंगडम, हुएवर द मेंबर विद द हैबिटेट बेस्ड करते हुए अगर हम ऐसा मान के चले, बट हमेशा की तरह ऑल आर बेसिकली लिविंग बीइंग. हैबिटेट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब में लाइफ है, लिविंग बीइंग है सब लोग, यानी सब में लाइफ है. एंड दिस लाइफ इज नाउ आउटकम ऑफ, यहां डायरेक्टली अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा दैट इज मेटाबॉलिज्म. इज एन आउटकम ऑफ, सब में जिंदा रहने के लिए जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है वो सब में हो रहा होगा. And that's how today we started our introductory lecture. And मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पैराग्राफ डिक्टेट किया, उसमें यही बात तो रखा, whoever the animal kingdom member, organism in animal kingdom, हर किसी के शरीर में एक एबिलिटी है टू मूव दी सब्सटेंसेस, क्योंकि उन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट किस चीज के साथ है? मेटाबॉलिज्म के साथ. तो उनको मिलता है और मेटाबॉलिज्म करके हर एक सेल एक्टिविटी करके फिजियोलॉजिकली क्या बॉडी को देता है? मेटाबोलाइट्स. ये तो हर किसी में चल रहा होगा जो किसी भी हैबिटेट को बिलोंग करे, लेकिन सबके शरीर का ये मेटाबॉलिज्म खुद मेटाबॉलिज्म दो तरह से परफॉर्म होता है. कैटाबॉलिज्म एंड, ये जरूरी नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमेशा बिल्टअप रिएक्शन नहीं हो, टूटकर भी डिस्ट्रक्शन रिएक्शन होकर भी कोई चीज प्रोडक्ट बन सकता है. बॉडी में मेटाबोलाइट बनाना दोनों तरह से चलता है ना? ब्रेकडाउन रिएक्शंस एंड बिल्टअप रिएक्शंस ऑल टुगेदर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. बट फाइनली दोनों मिलकर क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? मेटाबोलाइट्स अवेलेबल करा देते हैं. ठीक है, नाउ यहां से फिर तय होगा डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप ऑफ द बॉडी कि वो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट ऑफ इमीडिएट यूज, क्योंकि उसको बनाने के लिए ही तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म हो चल रहा था शरीर के अंदर. मेटाबोलाइट्स एक से ज्यादा बनेंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इमीडिएट यूज, उसको वही हासिल करने के लिए वो मेटाबॉलिज्म चला था, और उसके साथ जो बनेंगे उनको मैं अभी बाय प्रोडक्ट्स बोलूंगा. क्या कहूंगा? सिंपल केमिस्ट्री जो आप पढ़े, बाय प्रोडक्ट्स. गौर करिएगा, शरीर ही बना रहा है ना, तुरंत मैं वेस्ट नहीं बोलूंगा कि काम का नहीं है तो वेस्ट बन गया, ऐसा नहीं है. शरीर ही बना रहा है, जरूरत के लिए बनाता है, लेकिन एक जो तुरंत इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, उसी के लिए रिएक्शन था. लेकिन साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन गए. क्या बन गए? अब वो बाय प्रोडक्ट्स जो है
may fall under any category, सबस्ट्रेट से लेके ये, और तय होगा भविष्य में कि कैन बी स्टोर्ड और कुडंट बी, कैन बी स्टोर्ड और, सबको आ रहा है लॉजिक, यही फेट एंड डेस्टिनी, क्योंकि जिसका इस्तेमाल होना था हो गया, लेकिन अब जो बच गया बाय प्रोडक्ट्स की तरह बन गया, वो बनना तय है, क्योंकि एक बेसिक केमिस्ट्री है, उसके पीछे एक फंडामेंटल रूल है, रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप सभी को मैंने एक एक कार्ड शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी और कहा कि एवरीवन है ना कंडक्ट सम एक्टिविटी और कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाए, तो सबने अपनी अपनी शुरुआत कर दी, जिसको जो आता है बनाना। कोई इसको 100% फोल्डिंग करके कुछ बना दिया ऐसे करके, मतलब है ना प्लेन बना दिया, उड़ा रहे हैं ऐसे, कोई कुछ बना, मतलब डिफरेंट जिसके दिमाग में जो आया है। और एक कोने में जाके एक जन देख रहा हूँ ऐसे कुतरे जा रहे हैं बिल्कुल बिट्स ऑफ पेपर, मतलब पता नहीं बन क्या रहा है, अभी आ नहीं रहा समझ में, लेकिन नीचे देखते हैं तो लॉट्स ऑफ बिट्स ऑफ पेपर, मतलब ऐसा लग रहा है वेस्ट, अरे क्या बन के आएगा, मतलब आता है ना दिमाग में। लेकिन एट लास्ट एक फाइन हैंडीक्राफ्ट आइटम, एक गुलदस्ता बना, फ्लावर्स बिल्कुल ऐसे अच्छा, मतलब सुंदर सा। तो वो जो कार्विंग था, वो जो फाइन फिनिशिंग था, उस प्रोडक्ट को पाने के लिए साथ में क्या बना, बिट्स ऑफ पेपर, जो एग्जांपल मैंने लिया। अब वो बिट्स ऑफ पेपर काम के होंगे नहीं होंगे, ये है ना, वेदर टू बी डिस्पोज्ड एज अ वेस्ट। मेरी बात आ रही सबको समझ में? और किसी ने कुछ बनाया, 2 स्ट्रिप्स ऐसे निकल गए, अब थोड़ा महंगा पेपर है, ग्लिटरिंग पेपर है, एकदम से लगता है कि चलो बाद में कुछ रैपर्स की तरह गिफ्ट ही पैक करने में काम आ जाएगा, तो यू फोल्ड इट एंड कीप फॉर फ्यूचर यूज। यार यस और नो? नवर डे टू डे लाइफ हम ऐसे ही तो करते हैं। आपके घर में एक फर्नीचर बनना है, आपने सिंपल डिजाइन है, सीधा सीधा एक कवर्ड है, किसी को दिखा दिया, उसने लिया है सारे, जाके उसने कार्ड शीट्स कार्डबोर्ड्स को खरीद के लेके आ गया, प्लाई खरीद के लेके आ गया, सीधा सीधा काट के जोड़ के बना दिया, कम से कम प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत निकले होंगे टुकड़े। लेकिन वहीं आप किसी और एक जगह जाते हैं और वहां एक बहुत फाइन कार्व्ड, बिल्कुल बहुत सुंदर डिजाइन बना हुआ देखते हैं, और किसी अपने कारपेंटर को शो करते हैं, तो कहते हैं हाँ बना देंगे सर। और वो जब बनाना चालू कर रहा है तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे कटिंग्स निकल रहे हैं, है ना, तो दिल दुखेगा आपका कि अरे मेन प्रोडक्ट वेस्ट ज्यादा निकल रहा है। लेकिन उस फाइन कार्विंग के लिए आपको, तो वही है, बॉडी में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाते समय ऐसे कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो कि लेटर ऑन शरीर के किसी काम के नहीं होते। लेकिन बोले सर फिर उनका क्या, उनको बनने से रोकना चाहिए? नहीं चाहिए, ऐसा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे यही बनेगा, और ये जब बनेगा ये रिलीज होगा ही। बेसिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो ना भाई, कोई भी पेरेंट मॉलिक्यूल में उसके फंक्शनल ग्रुप्स ही तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज तय करते हैं, यस और नो? तो देयर इज अ चेंज इन द प्रॉपर्टीज। तो बॉडी में एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस चलते हैं फॉर दिस डे टू डे सर्वाइवल, जिनको हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं, और वो हो रहा है, हर एक सेल परफॉर्म कर रहा है, और बॉडी में लगातार वो उसको रिलीज कर रहा है एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए, वेदर टू बी यूज्ड और नॉट। लेकिन हर सेल अपना काम कर रहा है, लेकिन हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन सिस्टम अपना काम कर रहा है, बट नो वन इज बॉदर्ड कि हमारा किया हुआ काम शरीर के लिए क्या लेफ्ट आउट छोड़ के जा रहा है। हु इज गोइंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शरीर में काम के लिए, जिंदा रहने के लिए सब चाहिए। आप एक पेंटर हैं, आप एक कोई भी आर्टिस्ट है, या आप कोई भी तरह के वर्कर, आप है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, आप कुछ सर्विसेज देते हैं, तो आपका वर्कशॉप है, तो उसमें गंदगी तो होगी, क्योंकि आप अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, है ना, रोज काम चल रहा है, तो टेम्पररी डिस्पोजल, रोज रात को आप क्या करते हैं, सारी जरूरत की चीजें जो बन के फाइन होता जा रहा है उनको एक तरफ असेंबल, दूसरी चीजें एक तरफ, और उसको करने के लिए होगा ही ये काम। अब आप गंदगी का सोचते रहोगे कि नहीं 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 ये काम नहीं करेंगे, इससे गंदा होता है, तो काम ही नहीं कर पाओगे। वो तरीका फिर दूसरा ढूंढोगे ना उनको निजात पाना उनसे, टू गेट डिस्पोज्ड ऑफ ऑल दोस वेस्ट, यस और नो? सेम टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप टुडे। आज हम जिस टॉपिक पढ़ रहे हैं कि शरीर के इतने सारे सिस्टम्स, हर सिस्टम अपना काम कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे, हर सिस्टम का किया हुआ काम कुछ लेफ्ट आउट, कुछ छोड़ जाता है शरीर के लिए। तो कौन है जो उस छोड़े हुए चीज को डिसाइड करेगा वेदर इट इज ऑफ यूज और नॉट, व्हाट टू बी टेकन, उसके लिए क्या करना, क्योंकि अब उसको शरीर में रखा नहीं जा सकता। मेरी बात आ रही है सबको समझ में, एवरीवन? So that's the beginning of the chapter excretion, one of the biological physiological process which the nature has given boon to every, एक आशीर्वाद की तरह हर उस मेंबर को जो एनिमल किंगडम का मेंबर है, इसका मेंबर है, और हर मेंबर उसको एग्जिबिट करता है एबिलिटी टू एक्सक्रीट, एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, वेस्ट,
कौन सा टाइप है, नॉन नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। तो फर्दर ये कहानी आगे बढ़ती है इस तरह से कि बाय प्रोडक्ट्स सबसे पहले है ना, कैन नॉट बी स्टोर्ड। बॉडी के पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है डायरेक्टली उसको स्टोर करने का। पहला फैक्टर ये आता है कि बन तो गया वो, अच्छा अब कैन नॉट बी स्टोर्ड, फिर भी वो एक्यूमुलेट तो होगा टू एक्सेस, एक्यूमुलेट टू एक्सेस, और उसके बाद जी उसका टॉक्सिक एंड हार्मफुल इफेक्ट क्या आना शुरू हो जाएगा। When any byproduct show these three phenomena, that first of all they couldn't be stored, there is no metabolism bypass pathway to store it, फिर क्या होगा, अब स्टोर नहीं होगा यानी कहीं ना कहीं वो कंज्यूम नहीं हो रहा, उसको कहीं जो है असेंबल नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं भी अनवांटेडली स्टोर होने की कोशिश करेगा, एक्यूमुलेट होने की कोशिश करेगा, और तो एक्सेस हो जाएगा, और उसका एक्सेस ही टॉक्सिक हार्मफुल इफेक्ट लाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Then such byproduct is termed as waste for the body. Then such byproduct, क्यों? क्योंकि byproduct का डेस्टिनी दो तरह से, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिन पे ये बात लागू होता है, बट some byproducts could be stored by bypass metabolism. Any animal body as a member of animal kingdom, whether belonging to any habitat, उसके अंदर ये होना ही है, और जिस प्रोडक्ट को हासिल करके वर्कआउट करना है वो तो एक्टिविटी हो गई, बट साथ ही साथ ये देखा गया है कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो डेस्टाइंड है इन दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए। अब वापस इसमें आइए, क्या क्या स्टोर हो सकते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ये दोनों स्टोर हो सकते हैं, स्टार साइन बना के, कैन बी स्टोर्ड। और व्हाट अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स? could not be stored. So here arise the problem. सबस्ट्रेट्स की पहले बात कर लें, क्योंकि बाकी सब तो जो है नॉन नाइट्रोजनस, कैसे वेस्ट होंगे? वेस्ट बॉडी में हर चीज है जो इस डेफिनेशन को फॉलो करे, लेकिन अचानक अगले पल कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक वाटर, क्योंकि शरीर को 75, तो आमतौर पे बॉडी में एक्सेस वाटर वेस्ट हो जाता है, बशर्ते अगर वो ढंग से बॉडी से एलिमिनेट ना हो पाए। सबको मेरी बात आ रही समझ में? सबको मेरी बात आ रही समझ में? एडीएच काम ही नहीं कर रहा है, एडीएच ज्यादा काम कर रहा है तो वाटर रिटेन होकर ओडीमा हो जाएगा। एल्बुमिन ब्लड का जो है नहीं है, एल्बुन्यूरिया प्रॉब्लम है, तो वाटर ब्लड में ना रिटेन होकर आसपास टिश्यूज में चला जा रहा है, और ब्लड में ना जाएगा तो फिल्टर नहीं हो पाएगा, ओडीमा डिसऑर्डर तो आएगा। लेकिन उनके डिसऑर्डर्स और उनका इंपैक्ट अलग है। सारी कैटेगरीज अभी धीरे धीरे कवर, सबको आ रहा है समझ में? बिल्कुल, देखिए आपको दोबारा रटना ना पड़े, मतलब लॉजिकली दिमाग में प्लान करके चलो कि क्या हम और कैसे पढ़ रहे हैं। हाउ वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर, what was the basic gist of question which have arisen in our mind regarding this chapter, why it has been termed good riddance and homeostasis? ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनके मायने भी हैं, वो एक बार दिमाग में सेट हो जाए then things will become easy. तो पॉइंट टू बी नोटेड कि ओके, हर एक एनिमल मेंबर, ये तो बैक्टीरिया मोनेरा सब सारे किंगडम पे बात लागू होता है, लेकिन मुझे तो हमेशा जूलॉजी के रेफरेंस में बात करनी है, इसलिए मैं इस तरह के एग्जांपल स्टार्टअप दे रहा होता हूं। तो ठीक है, एनी लिविंग बीइंग स्पेशली बिलोंगिंग टू एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के हर मेंबर ने क्या तरीका ढूंढ निकाला है अपने लिए, हाउ टू गेट रिडेंस ऑफ
हिंदी का एक बहुत ही प्रचलित कहावत फ्रेज है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दैट्स द बॉडी इज गोइंग टू परफॉर्म, जिसको यहां इंग्लिश में है ना, गुड रिडेंस एंड होम्योस्टेसिस, निजात पा जाना। निजात किससे पा जाना? किसी और से नहीं, खुद के ही किए हुए किसी वर्कआउट, उस वर्कआउट को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। किया, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या हो सकता है, तो ऐसा ना हो इससे पहले कि वो कुछ शरीर में एक स्टेट ऑफ एनामोली क्या लाया जाए, क्या क्या कंडीशन ले आए, स्टेट ऑफ एनामोली, दिक्कत, उस दिक्कत का सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जहां कहीं भी मेटाबॉलिक हर्डल ब्लॉकेज हुआ, मेटाबॉलिक ब्लॉक, द बॉडी इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ लिथैलिटी, यानी शरीर में डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, एंड यू नो व्हाट एंथैल्पी लॉस इज। कोई भी सिस्टम अचानक से लिविंग से क्लोज्ड मतलब डेथ की ओर बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ ना हो। रादर एवरी मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम whoever made up of one or more than one cell, every cell want to maintain its metabolism, और उसके लिए उसके जो सब्सटेंसेस के लगातार एक्सचेंज रिक्वायरमेंट वो तो शरीर में होता रहता है, लेकिन उस दौरान कोई भी चीज शरीर में ऐसा रुक ना जाए, रह ना जाए, जो कि रुक कर शरीर को आगे चल के हार्मफुल टॉक्सिक इफेक्ट देने लगे। That's how we started the chapter। और उसमें जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हमने शुरू में तो उनको मेटाबोलाइट्स कहा, क्योंकि वो बॉडी के ही प्रोडक्ट है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। सबको मेरी बात आ रही समझ में? और एक नजर में सर सब लोग तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, तो हम वेस्ट का सोचे ही क्यों, कहीं ना कहीं, लेकिन भाई सिस्टम है ना, सिस्टम में फेल, तो तब क्या होगा? तो बैकअप में कुछ तो होना चाहिए जो ऐसे कंडीशन से हमें निजात दिलाए और हमें स्टेडी स्टेट दे, क्योंकि जब तक सब इस्तेमाल में मेटाबॉलिकली कहीं ना कहीं खप जाए, कंज्यूम हो जाए, थिंग्स आर गोइंग ओके, बट इफ नॉट देन व्हाट इज देयर डेस्टिनी एंड फेट इन द बॉडी, और शरीर का साथ क्या होगा, उसी को समझने के लिए ऐसा स्टार्टअप दिया। और अभी अभी आपके सामने दो कंडीशंस क्रिएट किए, केस वन, क्योंकि ये तो इस्तेमाल हो गया, बाय प्रोडक्ट्स के साथ क्या होगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा। अब इस कंडीशन का सामना कैसे करें, हाउ टू एनकाउंटर, कि ठीक है जिनको स्टोर कर सकते हैं वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बाय प्रोडक्ट में बन गए, भविष्य में इस्तेमाल हो जाएंगे, रख दिया एक तरफ मेटाबोलाइज करके, तो हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में, यस और नो? अभी अभी तो आपने मेटाबॉलिज्म पे लेक्चर लिया था, एंडोक्राइन सिस्टम, आपने देखा कि कैसे हार्मोन्स बैकअप में ये सब चीजें रेगुलेट कर रहे होते हैं, यस और नो? लेकिन जब वो अपना हार्मोन्स अपना काम करने में चूक गए, दे मिस देयर वर्क, बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक हर्डल्स क्रिएट होंगे, जरूरत से ज्यादा लिपिड बन रहा है, ये जरूरत से ज्यादा फैटी एसिड बन रहा है, और उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? इंसुलिन उधर साथ नहीं दे रहा, मेनी मेनी सच थिंग्स, देन हाउ द बॉडी इज गोइंग टू बैकअप, तब क्या होगा, उन मेटाबोलाइट्स के साथ क्या किया जाए? तो स्टोर हो गया सब कुछ ठीक है, लेकिन ये एक्सेस वाली बात जो आई है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, फिलहाल इन पर हम बाद में बात करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। मैंने सिनॉप्सिस में लिखा नहीं था, लेकिन मेंशन करेंगे अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, क्या पढ़ेंगे? लेकिन अब जिस सिस्टम और जिस क्या बोलते हैं मेन हम सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, वो किस मेटाबोलाइट से ज्यादा कंसर्न्ड है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में भी कौन? इन चारों से, इन चारों से ही पहले, लेकिन चारों में दो अच्छे हैं क्योंकि उनको हम स्टोर कर सकते हैं, दे डजंट गोइंग टू क्रिएट सच सिचुएशन इन जनरल। एक ऑर्थोडॉक्स एप्लीकेशन से बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स on the basis of chemical composition, nitrogenous and नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। शरीर में ये स्टेट लाने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, तो तब तक हमारे पास एनफ टाइम होता है टू गेट रिड ऑफ देम बाय अदर मैकेनिज्म्स, इसलिए वो ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। नॉन नाइट्रोजनस भी ऐसे सिचुएशन, लेकिन वी हैव गेट डिफरेंट वेज टू गेट रिड ऑफ देम, लेकिन हमारे पास एम्पल टाइम पीरियड भी नहीं होगा अगर कौन सा वेस्ट शरीर में अपने तयशुदा लेवल को क्रॉस कर जाए। दे आर वेरी हाईली टॉक्सिक,
है ना, डेट्रीमेंटल फॉर द बॉडी, डेट्रीमेंटल इफेक्ट, जिस हार्मफुल टॉक्सिक इफेक्ट, बढ़ता हुआ CO2 भी शरीर के लिए एस्फाइक्सिया, घुटन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं एस्फाइक्सिया, क्या कंडीशन, बढ़ता हुआ CO2 लेवल, हाइपोक्सिया प्लस एनॉक्सिया इज इक्वल टू एस्फाइक्सिया, घुटन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, मतलब घुटन आना, सफोकेशन। तो लेकिन वो तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन जनरेट होता है। आए दिन बॉडी को जिससे सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सो कॉम्पिटिटिव विंडो, let us discuss a question. Why nitrogenous waste are produced? यानी मेरे प्रीवियस डिस्कशन को जस्टिफाई करता हुआ और इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे बेसिक रीजन को डिफाइन करेगा ये क्वेश्चन, कि हम कुछ ऐसा करें ही ना जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट बने। फिर वही बात कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलते हैं, कुछ ऐसे मेटाबॉलिट्स की जरूरत पड़ती है इमीडिएट यूज के लिए जिसमें बाय प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बनेगा ही जिसको रोका नहीं जा सकता। रादर वी विल ट्राई टू डेवलप, हम अपना ऐसा कोई तरीका ढूंढ ले टू गेट रिड ऑफ इट टाइमली विद एन इंटरमिटेंट टाइम पीरियड, उससे समय समय पे हम उससे निजात पालें, ऐसा तरीका हम ढूंढ लें। दैट्स द चैप्टर। तो कॉम्पिटिटिव विंडो, व्हाई नाइट्रोजनस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड, द आंसर इज because an organism of animal kingdom have protein rich body। कैसा बॉडी? कुछ फंडामेंटल बात है, सही बात है। बिकॉज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल किंगडम मेंबर, प्रोटीन रिच शरीर है, हर एनिमल क्या है, इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड इफ वी कंपेयर विथ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम को तो प्लांट किंगडम के लिए क्या है, नाइट्रोजन क्या है, इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, यस और नो? तो बोले सर जब वो उसको एकम्प्लिश कर लेते हैं देन व्हाई डू यू नॉट? एक तरफ हम बोल भी रहे हैं कि हमारा शरीर प्रोटीन रिच है, शरीर को बिल्टअप कौन करता है, एनिमल बॉडी को, प्रोटीन्स, different types of structural and functional proteins, yes or no? So point to be noted, because an organism of animal kingdom have protein rich body, that is needs body built up units, that is needs body built up units made up of protein, but never an energy source, never an प्रोटीन हमारे लिए सिर्फ शरीर बनाने का एक बेसिक यूनिट, प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल, ऑसिन हड्डियों में ऑसिन, कोलाजन, एल्बुमिन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंजाइम सब बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन नेवर प्रोटीन इज सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स नहीं है। प्लांट्स में वो एनर्जी का सोर्स है। वो सबको मेरी बात आ रही है ना? नाइट्रोजनस कंपाउंड आर देयर न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ते हो आप, लेकिन एनिमल्स के लिए वही प्रोटीन सिर्फ शरीर को स्ट्रक्चरली फंक्शनली कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन शरीर में हिस्सा बनकर रहकर, है ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड एनी सच सिचुएशन इज नेवर एन एनर्जी सोर्स, क्योंकि जहां प्रोटीन ब्रेकडाउन शरीर में एनर्जी सोर्स का कंडीशन बनता है, इट्स अ साइन ऑफ सम डेट्रीमेंटल टुवर्ड्स लिथैलिटी, यस और नो? ये फंडामेंटल्स हैं। रादर carbohydrate and fat are energy source, thus can be stored in body। तो जितने भी बॉडी में बेसिक सबस्ट्रेट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, उनका इसलिए स्टोरेज होता है
एंड दे रेयरली डजंट एक्ट एज वेस्ट फॉर द बॉडी। क्यों? क्योंकि जितना इस्तेमाल होना है होकर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और जो बच जाता है वो तुरंत कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है बॉडी को, क्योंकि भविष्य में उसको रिजर्वायर की तरह, एज अ स्टॉक, एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी की तरह, वो दोनों ही फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। सबको आ रही मेरी बात समझ में? बट सरप्लस प्रोटीन्स या सरप्लस अमीनो एसिड्स, क्योंकि जब वो प्रोटीन फॉर्म में होता है, यानी वो शरीर में स्ट्रक्चरली फंक्शनली कुछ काम कर रहा होता है, प्रोटीन थोड़ी एलिमिनेट होता है शरीर से। यूरिन में प्रोटीन कभी एलिमिनेट नहीं होता है, और ना ही उसको बनाने वाला अमीनो एसिड। थोड़ा बहुत आ भी गया तो ठीक से इट कम्स अंडर माइल्ड एनामोली, लेकिन वो भी नहीं आ पाता क्योंकि उसको रोक लिया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बट सरप्लस अमीनो एसिड्स एंड नाइट्रोजनस बेस एंड प्यूरिन एंड pyrimidine, प्यूरिन एंड pyrimidine क्या बनाने में हेल्प करता है? जेनेटिक मटेरियल एंड ऑल दोज ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर्स। यस और नो? प्रोटीन मशीनरी क्या बोलेंगे, उतना बन गया सेल में बस, बाकी कोई अलग से नाइट्रोजन बेस्ड सेल के किसी भी कंपार्टमेंट में, ऑर्गेनेल में कहीं स्टोर नहीं हो सकता साइटोप्लाज्म में। आ रही मेरी बात समझ में? दे आर सरप्लस चाहिए। खाने में जब ब्रेकडाउन होता है, फिजियोलॉजिकली केमिकल डाइजेशन अकर्स इन द इंटेस्टाइन, फूड सोर्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स टूट के यही चार बेसिक चीजों को अवेलेबल कराते हैं, जो एब्जॉर्ब होके किस सर्कुलेटरी पाथवे से पूरे शरीर में मूव करते हैं? ब्लड। आज चैप्टर इसी बात से तो शुरू हुआ था। यस और नो? एवर आई विल स्टार्ट अ टॉपिक, मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि कभी कभी होता है ना कि एक्चुअली हमें रिदम आ नहीं रहा कि क्यों और क्यों क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परसिवरेंस रखे, सब आएगा समझ में, घूम फिर के वहीं पर ही पहुंचेंगे। दैट व्हाट आई स्टार्टेड, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अरे डाइजेशन एक मेटाबॉलिज्म ही तो है, जो आउटसाइड दी सेल्स इन ल्यूमन हो रहा है, इन एन हायर ऑर्गेनिज्म बॉडी, कॉम्प्लेक्स बॉडी, उसके लिए सिस्टम है, सिस्टम का एक हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल, उसके भी एक खास कंपोनेंट ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम रीजन और आपके ड्यूडेनम रीजन, उस एरिया में डाइजेशन चल रहा है। ठीक है, फाइनली फंडामेंटली क्या अवेलेबल होने वाला है? मेटाबोलाइट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड मोनोमर्स, जो एब्जॉर्ब होंगे किस प्रोसेस से? एब्जॉर्प्शन, सेल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से। कहां जाएंगे? इनटू अ पाथवे ऑफ द बॉडी, द रिवर ऑफ लाइफ कॉल्ड ब्लड। कुछ लिम्फ में जाएगा, अरे कहीं भी जाए, अल्टीमेटली मूविंग। वहां जाकर क्या करेगा? मूव करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। आज ही जाके एनसीईआरटी पहला पैराग्राफ पढ़ के तो देखिए, दैट्स हाउ द चैप्टर बिगिंस। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर थ्रू आउट यू हैव माइट हैव लर्न, भले वो चैप्टर तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हर चैप्टर ऐसे लिखा है ना, एज यू हैव लर्न दैट our circulatory system circulate the substances throughout the body, this category, and out of those some are metabolites of use and some are of not use, they are simply byproduct बन गए, और आगे उसका भविष्य क्या? That's begin the chapters, hence everyone needs है वो, इस तरह से। तो मैंने उसको एक अलग टच दिया है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, आज मैंने सबसे पहली कैटेगरी उठाई है सबस्ट्रेट्स, जो शरीर के लिए कंज्यूम होंगे और शरीर को कुछ काम देंगे, देते हैं, चारों के चारों देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? जो काम देते हैं उसी को तो हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, लेकिन फाइनली कुछ ना कुछ बच जाता है, बचने में चारों ही बच जाते हैं। क्या सरप्लस ग्लूकोज, अब याद करो रिवीजन, क्या सरप्लस ग्लूकोज नहीं बचता? बचता है। इंसुलिन क्या करेगा? अपटेक करा के फिर उसको लिपिड्स, लिपोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। यस और नो? फैटी एसिड्स बच गया सरप्लस, मेटाबॉलिज्म मूव करके पूरे शरीर में घूम के जितना अपटेक होना था, जहां जैसे स्टोर होना था। यस और नो? अब क्या फिर भविष्य? सरप्लस फैटी एसिड्स बच गया, अब उसका क्या डेस्टिनी है, क्या फेट है? यही लिखवाया था ना, व्हाट इज द फेट एंड डेस्टिनी ऑफ द गिवन अबव सब्सटेंसेस देयर आफ्टर। तो ऐसे करके जितना अमीनो एसिड्स हैं, जितने न्यूक्लियोटाइड, वो भी पहले अपटेक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बच जाते हैं, तो देयर आर समथिंग व्हिच कुड बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज बाय bypass metabolism, but there are something which couldn't be, and since they couldn't be stored, फिर वो तो फ्री हो गए, अब कोई उनको एंटरटेन नहीं कर रहा, ब्लड में घूमते घूमते वो कहीं भी जाके जमा हो जाए। अरे यस और नो? समाज में, सोसाइटी में चार फ्रेंड्स हैं, पढ़ाई लिखाई 12th तक, कॉलेज, ये वो जो भी प्रोफेशनली करके सेटल हो गए, 3 सेटल हो गए। अरे यस और नो? प्रोफेशनली सेटल हो गए, और एक जो है फ्री रेडिकल की तरह घूम रहा है।
नॉट बीन कंज्यूम्ड एनीवेयर एल्स, मतलब गया भी तो हाँ उसका काम पसंद उसको नहीं आया, उसका काम करने ऐसा आए दिन उसको रिजेक्शन, मतलब नॉकआउट होता रहा वो नॉट। अब वो फ्री रेडिकल की तरह क्या करेगा, बाकी तीनों के साथ मिलने चले जाएगा कभी भी, अनड्यूली फ्रेंड्स हैं। अरे यस और नो, सबको मेरी बात आ रही समझ में? देखो देयर आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये जो मैं समझा रहा हूँ, हम सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी क्या होता है, समाज का असामाजिक तत्व, द एंटी सोशल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी कम्स फ्रॉम द सोसाइटी। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी विच वाज अर्लियर अ मेटाबोलाइट, यस और नो, शुरू में मेटाबोलाइट ही होता है, लेकिन उसका भविष्य क्या, क्या उसके साथ हुआ, शरीर के क्या कंडीशंस थे, उसको एंटरटेनमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो खुद उसका हिस्सा बन पाया कि नहीं बन पाया। तो चार में से जो एक फ्री रेडिकल किया, फ्री रेडिकल कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा है, वो किसी के साथ ना कॉन्जुगेंट हो पा रहा है, ना बॉन्ड बना पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, ऑफ नो यूज, तो भी वो कोशिश करेगा इंटरफेयर करने का, यस और नो। तो तीन में से किसी भी एक फ्रेंड ने भी बोल दिया यार जब चाहे तुम आ जाते हो डिस्टर्ब करने, एक दिन गुस्से में आके 2-4 साल बाद बोल दिया, एक फ्रेंड जो थोड़ा अफसर वगैरह बन गया है, वो मीटिंग कर रहा है बैठा हुआ है, और वो पता चला ऐसी डोर से आके बोलो ऐसा डिस्टर्ब बोला, तो खुद आ गया, कभी कभी होता है ना कि आ गया वो तो मेरा फ्रेंड है, मैं मिलने कभी भी जा सकता हूँ, वही नेचर रह गया, तो एक दिन गुस्से में बोल दिया आइंदा मत दिखना इधर, आना भी मत, एक नेगेटिव, मतलब अब वो वही तो हुआ, धीरे धीरे टॉक्सिक इफेक्ट, बस दोस्ती टूट गई। और उस दिन वो कह रहा है अच्छा ऐसा, अब मैं बताता हूँ, या तो उसको हार्म पहुंचा दिया या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी, तो ऐसे लोग ही तो क्या होता है फिर वो एंटी सोशल एलिमेंट्स बनते हैं। तो बॉडी में भी यही कंसेप्ट है, क्योंकि वो बॉडी तो समय समय पे देयर नीड्स अ क्लोज विजिलेंस, देख रेख की जरूरत है कि शरीर में ऐसे चीजों की पहचान करके उनको तयशुदा लेवल पर पहुंचने से पहले ही उनको रोककर शरीर से बाहर कर देना। That ability to eliminate anything which is in excess going to execute and render the body to toxic and harmful effect rather turning out, मतलब वही वही प्रोडक्ट, शरीर का प्रोडक्ट ऐसा था, बाय प्रोडक्ट की जगह वो किसकी डेफिनेशन में आ गया है शरीर के लिए, वेस्ट ऑफ नो यूज। तो ऐसे तो बॉडी में बहुत तरह के, तो वेस्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, और अलग अलग क्लासिफिकेशन आने वाले दिनों में सब बता दूंगा मैं आपको। लेकिन द चैप्टर मेन रिवील्स विच एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी वेस्ट, वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, नाइट्रोजनस, जिनमें ये भी क्लासिकली हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट देयर एक्सटेंट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट इज रादर टाइम टेकिंग, so we have got surplus time to eliminate them and get rid of it, but what about the nitrogenous waste, उनसे हम ऐसा जो है उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका बहुत ही सेंसिटिव है, जरा सा लेवल हाइप हुआ उसका टॉक्सिक इफेक्ट शरीर पे आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नेचर ने उसको डील करने के लिए बॉडी में एक अलग सी सिस्टम बनाया, प्राइमरी सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन, प्राइमरी सिस्टम ऑफ, an excretion is now defined as elimination of nitrogenous waste, what waste, CO2 निकलना, बाइल निकलना, ये एक्सक्रीशन नहीं है, हम बोलते हैं रिलेटिव सेंस स्लैंग शब्द में कि these are other excretory methodologies, बट वो बॉडी के किसी है ना दूसरे सिस्टम से बाईपास में हो जाते हैं, फीकल के साथ बाइल सॉल्ट्स के वेस्ट और वो सब निकल गए, बाइल, मेरी बात आ रही समझ में, टॉक्सिक पिगमेंट वेस्ट, एक्सेस CO2 निकल गया, किससे, एक्सपिरेशन, व्हाइल वी इंस्पायर एंड एक्सपायर, एक्सेसिव वाटर पर्सपिरेशन के फॉर्म में निकल जाता है, जाते जाते भी शरीर को काम करके जाता है, अरे यस और नो, है ना, एक तीर दो निशाने वाली बात है कि बॉडी से क्या हो गया, वो निकल भी गया और इवोपरेट करके कूलिंग इफेक्ट देके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके गया। सबको मेरी बात आ रही समझ में? तो दीज आर सम अदर एस्पेक्ट्स फिजियोलॉजिकली फॉर द बॉडी, लेकिन जब हम इन दोनों को डील करते हैं और उनको शरीर से एलिमिनेट करते हैं, दैट्स प्योरली एक्सक्रीशन, क्योंकि वो एक्चुअल वेस्ट थे शरीर के, कैसे वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, कैसे वेस्ट, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक। तो आप गौर तो करो, मैंने आपको सिनॉप्सिस लिखवाया कैसे, जो इंट्रोडक्शन में ये बातें आ रही हैं, तो एक्सक्रीशन एंड इजेशन, बोले सर वेस्ट तो वो भी है जो हम डेफिकेट करते हैं, फीकल मैटर जो बॉडी से इवैक्यूएट होता है डेफिकेशन से, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, वो बॉडी वेस्ट नहीं होते, वो वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड वेस्ट होते हैं वो, जिसको फिजिकली डेफिकेशन से रिलीज करते हैं, और इसे हम जो है फिजिकली मिक्सचुरेशन से रिलीज करते हैं, किससे रिलीज करते हैं,
तो बिल्कुल चैप्टर के एलिमेंट्री क्वेश्चंस पहले कवर कर लें जरा, सबको आ रहा है बिल्कुल क्लियरली समझ में एवरीवन? तो बचे इन चारों में से ये दो हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि जहां ये सरप्लस होते हैं, क्योंकि जितना इनका इस्तेमाल होना तो हो गया, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम का प्रोटीन रिच बॉडी, बॉडी को बिल्टअप करने के लिए अलग अलग प्रोटीन्स है, सब में जितने कंज्यूम खपने थे खप गए, है ना, कंज्यूम हो गए, बट नेवर देयर आफ्टर लेफ्ट आउट कि चलो और एक काम कर दे। एनर्जी सोर्स नहीं है वो हमारे लिए एनिमल किंगडम में। वो कौन है? रादर ये, इसलिए इनको स्टोर किया जाता है। बट व्हेन सरप्लस अमीनो एसिड्स एंड नाइट्रोजनस बेस लेफ्ट आउट, could not be stored, could not be, है ना, could not be stored, because है ना, there is a metabolic loophole, कमी है, मतलब there is a metabolic loophole in animal metabolism. एक कमी है बॉडी के, यानी किसी भी एनिमल मेटाबॉलिज्म में, कि देयर इज नो डायरेक्ट पाथवे टू एंटरटेन सरप्लस लेफ्ट आउट अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन जो बच जाते हैं, उनको कहां किस फॉर्म में स्टोर करें? एक देयर इज इवोल्यूशन में ऐसा नहीं बन पाया, तो नहीं बन पाया। सबको मेरी बात है नहीं समझ में? इतने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो खपने थे, लेकिन नहीं हो पाया, और उसके कारण ही अब वो स्टोर नहीं हो पाते, और जैसे ही स्टोर नहीं होंगे ना कभी एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे और इफेक्ट्स आएंगे। Thus, every member of animal kingdom still ठीक है, भले ही ऐसा नहीं हो पाया जो भी है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सब्सिक्वेंट पाथवे, कुछ तो तरीका हो। Thus, every member of animal kingdom still follow the phrase, और वो फ्रेज क्या है? To do best out of waste. Now this is a well known proof कि कुछ तो ऐसा हो कि जो जिसको हम वेस्ट घोषित हो चुका है कि अब वो शरीर के किसी काम के नहीं है, क्योंकि स्टोर हो रहा है, कहीं स्टोर हो नहीं सकता, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो तो वेस्ट है, अब तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी कोई तरीका निजात पाने का और कुछ हो जाए कुछ। Does every member of animal kingdom still follow the phrase to do best out of waste? यानी हर किसी के पास ऐसा कोई ना कोई सेल, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन, एक मैकेनिज्म होगा, मतलब जो मैं अब समझाने जा रहा हूं वो ह्यूमन के रेफरेंस में, लेकिन ह्यूमन की तरह बाकी सब में भी अलग अलग तरह के सेल्स, टिश्यूज हैं जो इसी काम को अंजाम देते हैं और इस फ्रेज को सही साबित करते हैं, टू डू बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। और जो नहीं कर सकते तो उनको फिर अमोनिया डायरेक्ट रिलीज करना पड़ेगा। तो द क्वेश्चन अराइज, in human body, in liver, busiest metabolic organ, liver the busiest metabolic organ, है ना, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही लेगा क्योंकि वही सबसे बेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन माना गया है ना, डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन। कैसा ऑर्गन?
शरीर के हर तरह के मेटाबॉलिज्म का लेफ्ट पार्ट उसके पास ही जाता है और वो उसको एक तरह से रिडंस देता है, कोशिश करता है कहीं ना कहीं उसको यूज अप कर ले, लेकिन स्टिल वो इसमें नाकाम हो जाता है। अब आप देखिए लिवर, लिवर फॉलो दैट रूल, बीइंग अ मेटाबॉलिक ऑर्गन, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढता है। तो ह्यूमन या मैमेलियन बॉडी की बात करें एनिमल किंगडम में, इट परफॉर्म्स डीएमिनेशन। क्या परफॉर्म करता है? डीएमिनेशन रिएक्शन। डीएमिनेशन रिएक्शन करता है। व्हाट इज डीएमिनेशन? एक बेसिक अमीनो एसिड containing carboxylic an amino group with HN radical, है ना, दिस इज द अल्फा कार्बन, है ना, बस रेडिकल ग्रुप्स चेंज होता है, अमीनो एसिड्स अलग अलग टाइप के, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। तो व्हाट द लिवर ट्राई टू डू, कि उसने एक ऐसा तरीका सोचा कि सिर्फ इस अमीनो ग्रुप को हटा दें तो रेस्ट स्ट्रक्चर तो एक ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा। फिर देखिए एक मेटाबॉलिज्म, यानी मैं आपको जो कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर से लिवर, लिवर के सेल्स में, है ना, बॉडी, बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन, सिस्टम, सिस्टम में ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज। लिवर सेल, लिवर सेल ने अपना काम किया, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसने एक मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज डीएमिनेशन, इज अ मेटाबॉलिज्म। और कैसा है कैटाबॉलिज्म, फिर बना मेटाबोलाइट्स, बना तो दोनों ही मेटाबोलाइट ना, क्यों? क्योंकि ये बना ऑर्गेनिक एसिड, क्या बना? हाँ, इसका स्टोरेज हो सकता है, कहीं वो इस्तेमाल हो जाएगा, अलग अलग तरह के पाथवे में पार्टिसिपेट कर लेगा। लेकिन फिर वही बात हो गई, प्रोडक्ट ऑफ इमीडिएट यूज, और बाय प्रोडक्ट में क्या बना? अभी भी मैं इसको क्या कह रहा हूं, बाय प्रोडक्ट, क्या कह रहा हूं? सबको आ रहा है समझ में? बट सून दैट बाय प्रोडक्ट हैव टू चूज हिज डेस्टिनी, हैज टू चूज हिज वेदर कुड बी यूटिलाइज्ड और स्टोर्ड फॉर फ्यूचर और कैन नॉट बी। यानी लिवर ने पहले अमीनो एसिड से कई गुना ज्यादा और हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट बना दिया। सो द कंक्लूजन ऑफ द होल डिस्कशन इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब ये रिएक्शन हर एनिमल बॉडी में पहले यही होता है। अब कोई है जिसके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है, ना कुछ ऐसा और तरीका है कि वो अमोनिया को किसी और फॉर्म में स्टोर करके, रिलीज करके, कन्वर्ट करके, तो वो डायरेक्ट अमोनिया रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? तो द कंक्लूजन इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट in animal kingdom is ammonia, is तो थैंक गॉड लिवर बीइंग अ मिजियस मेटाबॉलिक ऑर्गन वो अपनी गलती को सुधारता है, ठीक है ना। उसने उसको पहले भी दिया था, उसने उसको कोशिश किया, उसने अपना मेटाबॉलिज्म किया, लेकिन और पहले से ज्यादा बॉडी को नुकसान। तो कुछ अब एनिमल्स अलग अलग तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। सबको चैप्टर का कंडक्ट आ रहा है समझ में? So that's how I have introduced the topic, the chapter to you. यहां तक इंट्रोडक्शन है। सबको आ रही मेरी बात समझ में, है ना? इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर की समझ में आ गया? यस, द होल एनिमल किंगडम, ईच एंड एवरी मेंबर, है ना, टू परपिचुएट इन अ गिवन हैबिटेट विद देयर लाइफ ड्वेलिंग प्रॉपर्टीज, एवरी बॉडीज अंडरगो मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म गिव्स मेटाबोलाइट्स टू द बॉडी विच इज ऑफ यूज। लेकिन जो यूज हो गए ठीक है, बट जो नहीं हो पाए, बाय प्रोडक्ट्स बन गए साथ में, बट देयर आफ्टर व्हाट, उसके बाद क्या? डेस्टिनी प्लान्स, या तो स्टोर या कुडंट बी। तो ऐसे तो बॉडी में बहुत कुछ है, लेकिन हम हमारे लिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजनस कैटेगरी, वो क्यों बनते हैं? उनके बनने का कारण मिला हमें। बेसिक कारण ये है क्योंकि शरीर
स्ट्रक्चरली जिन चीजों से बनता है वो एनर्जी सोर्स नहीं हो पाता, इसलिए उनका स्टोरेज नहीं हो सकता। जो हो सकते हैं उनका स्टोरेज हो सकता है। अब स्टोरेज नहीं होगा तो वो क्या है, वो एक कमी है, और उस कमी के चलते हुए उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। सो दैट्स द फ्रेज टू डू बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये तो एक तरह से अमीनो एसिड को सरप्लस वेस्ट घोषित कर दिया था, लेकिन वो तो लिवर ने उसको थोड़ा सा कंज्यूम करके बेटर बेस्ट पार्ट बनाने की कोशिश की, बट अगेन रूल फॉलोड, एक बाय प्रोडक्ट बना। बट अब की बार जो बाय प्रोडक्ट बना, it is a detrimental factor, determining factor for animal kingdom, that what will be the mode of excretion, क्योंकि अब इससे निजात पाना है, to get rid of the product, क्योंकि अब इसका आगे कोई डेस्टिनी नहीं है, बॉडी में बिल्कुल एंटरटेन नहीं हो सकता। 24 घंटे में ह्यूमन बॉडी में जहां एमोनिया का लेवल है ना, एमोनिया का लेवल पूरे बॉडी में है ना 4 ग्राम पर 100 ml, 4 ग्राम पर 100 ml बढ़ गया। 100 ml ब्लड इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, 100 ml में अमोनिया जहां 4 ग्राम है ना पर 100 ml बढ़ गया, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ टॉक्सिक इफेक्ट। सबको मेरी बात आ रही है समझ में, एवरीवन? तो ह्यूमन बॉडी नहीं, ऐसे कोई भी एनिमल बॉडी हो, थ्रू आउट सबका प्राइमरी वेस्ट एमोनिया ही बनता है, लेकिन एमोनिया से आगे क्या होगा नहीं होगा, that decides the mode of excretion, type of excretory structure and many other such factors। तो उस पर ही मैं अभी कंक्लूड करूंगा। पहले ये सबने नोट डाउन कर लिया यहां तक? Soon after the introduction, let us compare excretion versus egestion. Elimination of nitrogenous waste, elimination of, और ये elimination of fecal matter, produced by body, जबकि comes along with food। comes along with food, यहां मैं लिख सकता था अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड, एक ही बात है, फीकल मैटर वही है। लार्ज इंटेस्टाइन में लेफ्ट आउट पार्ट जिससे ना आपको ये चीज एब्सॉर्ब हो सकता है ना और फर्दर डाइजेस्टिव एक्टिविटी होगा, इट इज जस्ट सिंपली सॉलिडिफाइड ओवर देयर एज पैलेट्स टू बी इवैक्यूएटेड फिजिकली, उसको बॉवल मूवमेंट से इवैक्यूएट कर देने का प्रोसेस होना है, दैट्स द फीकल मैटर। ठीक है, फिर द एक्ट ऑफ एलिमिनेशन, द फिजिकल वे इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन, क्या कहते हैं, जबकि इधर हम उसको कहते हैं डेफिकेशन। परफॉर्म्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, जबकि परफॉर्म्ड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। टू कंडक्ट द फर्दर डिस्कशन, बीच में ये मेंशन करना जरूरी है, ठीक है,
एक्सक्रीशन और रिजेशन दोनों ही वेस्ट को डील करता है, एलिमिनेट। बट वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी से ही बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको एक्सक्रीट करना, एलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। मिक्सचुरेशन इज द फाइनल वे एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करता है, एंड सो ऑन। नाउ इन एनिमल किंगडम 3 फैक्टर्स डिसाइड्स मोड ऑफ एक्सक्रीशन। सबसे पहले तो टाइप ऑफ हैबिटेट, दूसरा है वाटर अवेलेबिलिटी। इंडीड वो 3 की जगह 4 फैक्टर्स हो जाएगा अगर मैं फाइनली बात करूं तो। एक ही बात को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके लिखें तो 4 फैक्टर्स हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट, क्योंकि हैबिटेट जैसा होगा वाटर है ना, अवेलेबिलिटी, फिर टाइप ऑफ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट टाइप ऑफ कौन सा है, क्योंकि वो भी तो तय कर लेगा क्या वो अमोनिया को रिलीज करने के लिए तैयार है कि उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करेगा। तो टाइप ऑफ वेस्ट, और वेस्ट जैसा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी वैसा। एनसीईआरटी में ये बातें बहुत डिस्क्रीट करके पहले पेज के सेकंड पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि किडनी डज नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल या इनसिग्निफिकेंट फॉर अमोनियम एक्सक्रीशन फॉर। ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, मैं उस बात को जस्टिफाई करूंगा। सबको मेरी बात आ रही समझ में? तो गौर करेगा, बिल्कुल सिस्टमैटिकली चीजों को बनाया जा रहा है। इन एनिमल किंगडम फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिसाइड्स मोड ऑफ एक्सक्रीशन, हैबिटेट, वाटर अवेलेबिलिटी, टाइप ऑफ वेस्ट एंड उसके अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ। अब इन चारों फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर, क्योंकि बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीशन के थ्रू जो रिलीज होगा है ना, वो किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में। किस फॉर्म में? सेमी सॉलिड में भी, लेकिन हर कोई नहीं करता वैसा। मैक्सिमम मेंबर्स 98% मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम eliminate the waste, nitrogenous waste by excretion from their body in dissolved form। और dissolved word आता है मतलब solute और solvent। तो what is the universal solvent for an living body? Water, whether it comes from external या metabolically अंदर से बने। तो बाहर से आए या अंदर से बने, इंटरनल एक्सटर्नल, गेन ऑफ वाटर आउटसाइड या लॉस कर देना, मतलब वाटर कितना अवेलेबल होगा, कितना अवेलेबल कर सकते हैं, दैट फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं मेंशन करने जा रहा हूं, बाय कंसिडरिंग द वाटर अवेलेबिलिटी फैक्टर, सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंगली ऑस्मो रेगुलेशन in human, it's simply a mechanism of equilibrium। इक्विलिब्रियम दोनों तरह से हासिल होता है, गेन ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ वाटर। तो गेन ऑफ वाटर के तरीके बॉडी में क्या है? सबसे पहले तो फिजिकल ड्रिंकिंग है ना, प्लेन वाटर पी लेना, फिजिकल ड्रिंकिंग। दूसरा, जो शरीर में खुद अलग अलग मेटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिक वाटर बनता है ना, अलोंग विथ फूड। अलग अलग तरह के आप जो फूड लेते हैं, ग्रेवी रहता है उसमें है ना, तो उसके साथ जो पानी आता है, कोई भी चीज आप खाते हैं, ठीक है, सैलेड्स आप ले रहे हैं, कोई भी तरह का सॉलिड फूड ले रहे हैं, उसमें मौजूद जो वेट है उसका, पानी उसमें मौजूद है, वो आना अलोंग विथ फूड। या फिर लिक्विड डाइट ले लेना, कोई स्पेशली कोई कैसा लिक्विड डाइट, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस, फ्रूट्स वगैरह जो है आप उसके शेक वगैरह लेते हैं, दैट्स द लिक्विड डाइट अपने डे टू डे लाइफ में।
तो एक फिजिकल प्लेन ड्रिंकिंग से मेटाबॉलिक वाटर जो शरीर में बनता है अलोंग विथ फूड या लिक्विड डाइट। लेकिन लॉस होने के तरीके क्या क्या है? सबसे पहला तो है परस्पिरेशन। क्या है? एक्सेसिव स्वेटिंग। फिर जब आप बात करते हैं दिन भर एक्सपायर करते हैं, वाटर वेपर फॉर्म में लॉस होना, तो परस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, स्पिटिंग, ये जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस दिन भर में बनते हैं, दे कैरी लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी डेफिकेशन के थ्रू। सबको आ रहा है इनडायरेक्टली, मतलब कुछ चीज होता है अपेरेंटली हमें महसूस नहीं होता, बट इट इज गोइंग ऑन इन दी बॉडी। एक तो आपकी स्पिटिंग की हैबिट है ना, आ रहा है सबको समझ में। जिन लोग, काफी लोग होते हैं थूकने की आदत होती रहती है, क्यों? वही च्यूइंग हैबिट्स या खुद ही बस एक आदतन बन गया है, थोड़ी देर बाद ही स्पिट आउट करना। तो सच पीपल फंडामेंटली गो थ्रू दोज मेटाबॉलिक डिहाइड्रेशन कंडीशन। कैसा कंडीशन? तो परस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, स्पिटिंग, डाइजेस्टिव जूसेस, यूरिनेशन। तो नेचर ने बैलेंस किया है, 4 तरीके से आप गेन करते हैं और ये ऑल ओवर 4-5 तरीकों से आप लॉस करते हैं। तो ये जो चल रहा है इसके बीच वाटर शरीर में 70-72% बना रहना, और उसमें से फिर यही सब स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन में मेंशन्ड है कि 1/5 ऑफ द वॉल्यूम में। ये सब क्यों पहले से समझा रहा हूं? क्योंकि जैसे ही चैप्टर के बिल्कुल मिड ऑफ द टॉपिक पे पहुंचेंगे फिजियोलॉजी, उस दिन आप इस चीज को जज कर सके कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, हर्डल्स, ये सब क्या शरीर का मेटाबॉलिज्म ही तो है। इतने चीजों का सामना करने के बाद भी शरीर को अपना मेन काम अंजाम देना है, कंप्लीट करना है, एंड दैट इज टू गेट रिड ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, सम विच इज गोइंग टू बी टर्न आउट सो कॉल्ड टू बी वेस्ट, जैसा कि हमने देखा। और शरीर को बनाए भी रखना है। शरीर को बनाए रखने की एबिलिटी को तो कहते हैं होम्योस्टेसिस, क्योंकि बने रहेगा हम जिंदा रहेंगे, सर्वाइवल वैल्यूज बने रहेंगे। और जरा सा ये चीज धीरे धीरे ड्रॉप करता गया, वन डे एंट्रोपी विल इंक्रीज एंड वी हैव टू सरेंडर, है ना, बाय लूजिंग आवर लाइफ। द ऑर्गेनिज्म लूजेस इट्स लाइफ। लाइफ इज एन अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ लिविंग बीइंग। वापस उसी पे आ गए, क्योंकि एनिमल किंगडम का हर मेंबर कौन है? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग इज रिजल्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इटसेल्फ इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो शरीर में ये सब कुछ ही तो मेटाबॉलिज्म है, चल रहा है सब कुछ। और इन सब के बीच शरीर अपना एक फंडामेंटल रोल अचीव करता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, है ना, बाय गेटिंग व्हाट? अ गुड रिडेंस एंड होम्योस्टेसिस फॉर द बॉडी। लेकिन रिडेंस किससे? किससे छुटकारा पाता है? एक ऐसे चीज से जो शरीर ने कहीं और से नहीं आया, खुद शरीर ने बनाया। शरीर ने क्यों बनाया? क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म करने पड़ते हैं, और मेटाबॉलिज्म की डेस्टिनी 100% इफेक्टिव नहीं होता है। 99% भी अगर वो उसने कुछ अच्छा बना दिया, 1% भी वो बाय प्रोडक्ट में बना देगा कुछ ऐसा जो कि शरीर के किसी अब काम का नहीं रहा। तो सर्कुलेट कराते हुए अमंग ऑल दोज मेटाबोलाइट्स, किन मेटाबोलाइट्स को डिस्टाइंड वे में कहां पहुंचा देना है आफ्टर अ टाइम। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा हर मिनट 1/5 ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, 1/5 ऑफ द कहां पहुंचाता है? टुवर्ड्स द किडनी। तो 5 लीटर में से 1200 ml ब्लड दोनों किडनी की तरफ हर एक मिनट, यस और नो? 600 ml ब्लड दोनों किडनियों को डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सबको आ रहा है समझ में? और हर मिनट 600 ml ब्लड 10 लाख नेफ्रॉन से गुजरता है, यस और नो? नेफ्रॉन, द फिल्टरिंग यूनिट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यही सब पढ़ना है इन चैप्टर्स में। तो थैंक्स टू द नेचर कि every member of animal kingdom has been given the ability to exhibit and establish that ability to eliminate the category of metabolites to be categorized as, जिनको हमने recognize किया as nitrogenous waste from the body intermittently, so that they couldn't able to generate any such metabolic block, क्योंकि वो एक ऑक्सीडेंट्स की तरह, फ्री रेडिकल की तरह शरीर में घूमेंगे और अनचाहे रूप से, बोलते ना, अनवांटेडली they are going to get a chemical interference with the other metabolism, जिनसे वो खुद बने। और ऐसा ही हम नहीं चाहेंगे, है ना। तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम्स बनाए गए, कानून बनाए गए, उनकी क्या क्या उनका रोल है? टू कीप लॉ एंड ऑर्डर, टू कीप
by keeping a check and vigilance on all those people who are moving freely, unwantedly in the society among the citizens. Yes or no? सबको आ रहा है लॉजिक? लाइफ का प्रिंसिपल सेम है. समय समय पे इनकी पहचान करके धर पकड़ करके उनको अलग कर देना, जिससे कि वो कोई ऐसा क्या बोलते हैं ना मिस नॉर्मली कुछ मिजरेबल कंडीशन क्रिएट ना कर दे सोसाइटी के लिए कि वी हैव टू सफर फ्रॉम लॉस एंड बोलते हैं ना लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो एंटी सोशल सारे एक्टिविटीज हो जाते हैं. तो अलग अलग चैप्टर्स में पढ़कर समझने के अलग अलग कंसेप्ट, लेकिन एज अ होल आपके सामने बात एक ही आएगा, थैंक्स टू द सिस्टम ऑफ दैट रिडेंस. और इसके लिए अभी अभी हमने देखा कि उसका काम जिम्मेदारी दो है. देयर आर टू साइड ऑफ अ कॉइन, सिक्के का दो पहलू है. कि जिन वेस्ट से हम निजात पाने के लिए इतनी सब तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अहम फैक्टर है. कौन? वाटर अवेलेबिलिटी. तो मैंने आज क्लास के शुरू में कहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. अब एनिमल किंगडम पे आ जाइए, फिर बैक टू दैट कंसेप्ट. हैबिटेट बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हैबिटेट से पानी का अवेलेबिलिटी, और उस पानी को कितना अवेलेबल कराएगा और डिपेंड करता है वेस्ट पे. एमोनिया है तो ज्यादा पानी चाहिए, यूरिया है तो उससे रिलेटिवली कम चाहिए, और रिलेटिवली वेरी लीस्ट ना के बराबर नेग्लिजिबल यूरिक एसिड. तो ये सब कंसेप्ट कहां से आए हैं, कैसे आए? सबको आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, वो सब तैयार कर लिया, लेकिन साथ ही साथ इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में टेक्सोनॉमिकली एनिमल किंगडम का शरीर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? उसने वेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने अंदर स्ट्रक्चर वैसा बना रखा है कि नहीं कि उसको उस सरफेस से निकाल सके? सबको मेरी बात आ रही समझ में? तो गिल्स और बॉडी सरफेस से एमोनिया डिसॉल्व होके हाईली सॉल्यूबल विथ मोर वाटर कंटेंट आराम से हो जाता है, बट इट कुडंट बी अचीव्ड बाय किडनी, क्योंकि किडनी डू इट वेरी सिलेक्टिवली. किडनी डू इट वेरी, उसके सरफेसेस नहीं है, उसके टिब्यूल्स हैं. क्या है? अब आ रहा है लॉजिक समझ में? हेंस किडनी डजंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल फॉर एमोनिया रिलीज. अगर किसी का वेस्ट यूरिया है तो उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किडनी या किडनी जैसा होना चाहिए. किडनी या, क्योंकि कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट मेंबर्स में भी यूरियोटेलिज्म क्या पाया जाता है? सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो बहुत बारीकी से ऐसे जज करके एक कंसेप्ट वाइज आपके दिमाग में सब क्लियर रहना चाहिए. तो दैट्स हाउ द चैप्टर बिगिंस बेसिकली. यहां तक किसी को कोई डाउट? एवरीवन वेरी क्लियर? ठीक है. तो जस्ट आई एम नाउ होल्डिंग द डिस्कशन ओवर हियर. हम नेक्स्ट क्लास यानी वेडनेसडे एक फुल फ्लेज 11 बजे तक उस दिन क्लास लगेगी, मैं यहां से आगे कंडक्ट करूंगा. तो अब मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूं. ठीक है. अब देखिए, आज आप लोगों को जो बुकलेट्स मिले हैं, सब लोग जरा बुकलेट्स निकाले टेक्सोनॉमी.